Sajida Rashid with BA Zoology 4th semester, subject Animal Form and Function 2. Lecture number 11. Today our topic of discussion is movement and what is the difference between muscular and non-muscular movement. First of all, you have to know about what is movement. Actually, movement, it is the characteristics of certain cells, protists and animals. For example, white blood cells, coelomic cells and protists such as amoeba utilize non-muscular amoeboid movement. So, ऐसे living organism which don't use muscles, skeletal muscles, smooth muscle for movement, but move through different pseudopodia-like structures. Pseudopodia, as you know, amoeba move through pseudopodia, false fit. Those living organisms which don't use muscles for movement. So this type of movement, it will be called non-muscular movement. After that, non-muscular movement, nearly all cells have some capacity. So movement, it is actually the short question. Next long question, what is the difference between muscular and non-muscular movement? First of all, non-muscular movement, nearly all cells have some capacity to move and change shape due to their cytoskeleton. For example, protozoan protists move by means of specific non-muscular structure, that is pseudopodia, flagella or cilia. As you know, amoeba having false fit, pseudo mean false, podia mean fit like structure. Having false fit pseudopodia and flagella, they move by cilia, flagella, either pseudopodia. That's why this type of movement, it will be called non-muscular movement. उसके अलावा नॉन-मस्कुलर मूवमेंट और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? एमोबॉइड मूवमेंट जो है ये भी नॉन-मस्कुलर मूवमेंट है. सिलरी एंड फ्लैजिलर मूवमेंट ये भी नॉन-मस्कुलर मूवमेंट में आती है. उसके बाद हमने बात करनी है मस्कुलर सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट. Invertebrates are those living organisms which don't have vertebral column, and how muscular movement is proceed and fulfill in invertebrates. अब muscular movement क्या होता है? जिसमें different muscles involve होते हैं for their proper movement. Among invertebrates जैसा कि bees, wasps, flies and beetles, muscular system is found flight muscles, because यहाँ पे muscles की involvement होगी है. तो ऐसी मूवमेंट जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं, फिर ऐसी मूवमेंट को क्या कहेंगे? मस्कुलर मूवमेंट. और जिस मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसी मूवमेंट को क्या कहेंगे? नॉन मस्कुलर मूवमेंट. आर फाउंड दीज मसल्स आर कॉल्ड एसिंक्रोनिक मसल्स. एसिंक्रोनिक मसल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. अब डिफरेंट इंसेक्ट्स, फ्लाइज, वेब्स, बीज के मसल्स को एसिंक्रोनिक मसल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज द अपवर्ड विंग मूवमेंट, इनके विंग्स की जब ऊपर फ्लाइट करने की जो विंग्स की अपवर्ड मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं? एसिंक्रोनिक मसल्स. द इनवर्टिब्रेट्स हैविंग मस्कुलर सिस्टम आर द फॉलोइंग. उसके अलावा इनवर्टिब्रेट में और कौन कौन से मस्कुलर सिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं? सबसे पहले द लोकोमोशन ऑफ सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स. ऐसे इनवर्टिब्रेट जिसमें सॉफ्ट बॉडी होती है, इसमें भी मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. ट्रस्टियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, दैट इज़ वॉकिंग. जो ट्रस्टियल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट्स हैं, जब वो वॉकिंग करते हैं तो उनकी वॉकिंग में, मूवमेंट में भी क्या इन्वॉल्व होते हैं? मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. आफ्टर दैट ट्रस्टियल लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, दैट इज़ फ्लाइट. जैसे ही डिफरेंट बीज, वेब्स अपनी फ्लाइट के फिनोमेना को फुलफ़िल करते हैं, तो देन अपवर्ड लिफ्ट के लिए भी इनकी मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती हैं. इनके विंग्स में फ्लाइट मसल्स हेल्प आउट करते हैं. आफ्टर दैट ट्रस्टेड लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट जंपिंग. अब कुछ जो हैं भीड़ वगैरह और वैस वो खुदकती हैं, ऐसे जंप करती हैं. अब जंप करने के लिए भी इनके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. दैट्स वाई ये फिर कौन सी मूवमेंट हुई? मस्कुलर मूवमेंट. उसके बाद ये ऑल अबव जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? दीज आर द एग्जाम्पल एंड सिस्टम ऑफ मस्कुलर मूवमेंट फाउंड इन इनवर्टिब्रेट. सो आई रिपीट इट अगेन. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज movement and what is the difference between muscular and non-muscular movement. So movement, it is actually the characteristics of certain cells,
protists and animals. For example, white blood cell, coelomic cell. Coelomic cell are those cells having coelom cavity. एंड प्रोटिस्ट जैसा कि अमीबा यूटिलाइज नॉन मस्कुलर एमोवाइड मूवमेंट, क्योंकि इनमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दैट्स वाई ये नॉन मस्कुलर मूवमेंट फुलफिल करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मस्कुलर एंड नॉन मस्कुलर मूवमेंट. सो नॉन मस्कुलर मूवमेंट nearly all cells have some capacity to move and change shape due to their cytoskeleton movement. Protozoan movement like amoeba move by pseudopodia and flagella and cilia. सो ऐसे स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये मूव करते हैं और इसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऐसी मूवमेंट को क्या कहेंगे, नॉन मस्कुलर मूवमेंट, एमोबॉइड मूवमेंट एंड सिलरी एंड फ्लैजेलेटेड मूवमेंट. उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक जो डिस्कस किया है दैट इज़ मस्कुलर मूवमेंट. सो ऐसी मूवमेंट जिसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, मस्कुलर मूवमेंट. अमंग इनवर्टिब्रेट्स डिफरेंट बीज, वेब्स, फ्लाइज एंड बीटल, जब ये फ्लाइट करती हैं तो फ्लाइट मसल्स अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, और ऐसे मसल्स को एसिंक्रोमिक मसल्स कहते हैं क्योंकि ये इनकी अपवर्ड लिफ्ट में इनको हेल्प आउट करते हैं. आफ्टर दैट हमने बात करनी है कि इनवर्टिब्रेट में कौन से मस्कुलर मूवमेंट पाई जाती हैं. डिफरेंट हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया है. लोकोमोशन ऑफ सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स, जो सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें लोकोमोशन कैसे होती है, ट्रस्टेड इनवर्टिब्रेट्स में वॉकिंग कैसे होती है और ट्रस्टेड लोकोमोशन कैसे होती है. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ यू.